મજ્જા અને સાંદાને પણ તે જુદા કરે છે, અલગ અલગ કરી નાખે છે, આપણી સાથે વાર્તાલાપ કરે છે, નિર્બુદ્ધિને બુદ્ધિમાન બનાવી દે છે, તે આશીર્વાદો આપે છે, આપણી સાથે વાર્તાલાપ કરશે. અને ખરેખર આજની રાત્રિમાં પ્રભુની ઉપસ્થિતિ આપણી મધ્યમાં છે. આવી આપણી આંખોને આપણે બંધ કરીએ. આ સમયે વચન માટે અને આવેલું દાન માટે આપણે પ્રાર્થના કરીશું. અને દાઉદભાઈ આપણા મધ્યમાં છે. દાઉદભાઈ પ્રભુના દાસ સિલેટવેલથી દાઉદભાઈ તેઓ આગળ આવશે, વચન માટે અને આવેલા ભેટના માટે પ્રાર્થના કરશે. આવી આપણી આંખોને આપણે બંધ કરીએ. સારું, પ્રાર્થના કરીએ. પવિત્ર 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 અતિ પવિત્ર પરમેશ્વર યહોવા પ્રભુજી, પિતા અમે તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પિતા પરમેશ્વર. આજના સુંદર અવસરના માટે પિતા અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પિતા. આજની સાંજ પ્રભુ પરમેશ્વર તમે અમને અમારા જીવન અંદર આપી, આજની આશીર્વાદની સાંજના માટે પિતા અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પિતા. એ મહાન રાજાઓના રાજા પરાક્રમી સનાતન પરમેશ્વર યહોવા પ્રભુજી, પિતા પ્રાર્થના કરું છું વિશેષ કરીને પિતા પ્રભુ પરમેશ્વર યહોવા, આજની સભાની અંદર પ્રભુ પરમેશ્વર તમારી એક અદ્રશ્ય ઉપસ્થિતિના માટે પિતા અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પિતા. પ્રભુ પ્રાર્થના કરું છું વિશેષ કરીને પિતા પ્રભુ પરમેશ્વર યહોવા, આ કન્વેન્શનના ખર્ચના માટે પિતા પરમેશ્વર તમારા પ્રિય લોકોએ પ્રભુ પરમેશ્વર યહોવા પ્રભુજી એક મન ખોલીને પિતા પ્રભુજી તમારા રાજ્યના માટે પરમેશ્વરજી અર્પણ આપી છે, તમને તમે સ્વીકારો. અને જીવતા પ્રભુ હું પ્રાર્થના કરું તમામ ખર્ચાઓ ઈસુના નામમાં પૂરા થાય એવી કૃપા પરમેશ્વર તમે થવા દેજો પ્રભુ. પ્રાર્થના કરું છું વિશેષ કરીને પિતા પરમેશ્વર યહોવા, તમારો પ્રિય અભિષેક દાસ પિતા પરમેશ્વર જ્યારે વચનો લઈને આવશે પ્રભુ તમે તેમની સાથે બોલોને વાતચીત કરો. હે પવિત્ર આત્મા દેવ, એ વચનો અમને સારી રીતે સમજી શકીએ અને એ વચનો અનુસાર અમે જીવન જીવીએ માટે તમે કૃપા પૂરી પાડો. તમારા પ્રિય દાસને મેં તમારા મહિમાના હાથોમાં સોંપી દઈશ રાજા. હાલેલુયા. ધન્યવાદ છે તમામ પ્રકારની ગરબડી લાવનારી આત્મા, હરેક પ્રકારની વચન છોડનારી આત્મા નાસરત યેસુ ખ્રિસ્તના નામમાં દૂર થઈ જાય. અને જેટલા પણ ઉપસ્થિત છે દરેકના જીવનમાં પ્રભુજી, ઓ પ્રભુજી આજનું વચન પ્રત્યેકના જીવનમાં, પ્રત્યેકના પરિવારના અંદર પ્રભુજી એક આશીષનું કારણ બને એવી કૃપા પરમેશ્વર તમે થવા દેજો પિતા પ્રભુજી. ધન્યવાદની સાથે મારા મુક્તિદાતા પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્ત તમારા પવિત્ર સામર્થ્ય નામમાં માંગીએ છે. આમેન. હાલેલુયા, હાલેલુયા. શું તમે વચન સાંભળવા માટે તૈયાર છો? હાલેલુયા. પ્રભુની ઉપસ્થિતિમાં આનંદની સાથે આપણે આરાધના કરી. જ્યારે આરાધના કરતા હતા ત્યારે હું પાછળ હતો અને પ્રભુના દાસ તેમની જીવનના માટે વિચાર કરતો હતો. જ્યારે તેઓ પ્રથમ વખત ગંગાપુરની અંદર આવ્યા ત્યારે અમે 5-6 સેવકો હતા, તેઓને સ્ટેજ પર બોલાવીને પતિ પત્નીની સાથે ઉભા રાખીને બરાબર નંચાવ્યા અને તેમણે બપોરે જ કહી દીધું, આજ શામ કો આપ લોગો કો મેં નચવાઉંગા. મેં કીધું આ વખતે અમે બચી ગયેલા છે. બધાને જ પકડીને પછી સુરજભાઈ ઉપર લાવીને પછી અમને આરાધનાને માટે નંચાવી દીધું. હું આગળ આવા પ્રભુના દાસના હાથમાં સોંપવા માંગુ છું. તેઓ ખરેખર એક પ્રભુના મહાન દાસ છે અને અમારા ફેલોશિપ પરિવારમાંથી તેઓ એક બોર્ડ મેમ્બર છે અને તેઓનું આવું ગંગાપુરમાં અમારા માટે આશીર્વાદનું કારણ છે. અને તેઓ જ્યારે બી આવ્યા છે, ફેલોશિપ સેવકાઈ આશીર્વાદિત થઈ છે, આગળ વધી છે. તો આજની રાત્રિએ પણ પ્રભુ અદ્ભુત આપણા મધ્યમાં કામ કરશે. આવીએ જોરદાર તાળીઓ દ્વારા પ્રભુના દાસ પાસે સ્ટેન્લી જોનનું સ્વાગત કરીએ અને તેઓ આગળ આવશે પ્રભુનું વચન લઈને. Praise the Lord, Pastor गुलाब भाई, प्रभु आपको आशीष देने पाए. Praise the Lord. मैंने सुना नहीं, बोलिए Praise the Lord. मैंने सुना नहीं, बोलिए Praise the Lord. मैं चाहता हूं आप सब एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. हमारी बहुत सी बहनें उधर पीछे बैठी हैं, थोड़ा सा मंडप से बाहर. अगर ये सामने वाली बहनें थोड़ा सा आगे आ जाएं, हमारे भाई लोग भी थोड़ा आगे आ जाएं. थोड़ा सा तकलीफ दूंगा ताकि वो बहनें पीछे ठंड में ना बैठे. आ जाइए. बहुत अच्छे लोग हैं आप. इधर ये वाला लाइन भी खाली है. यस, जल्दी थोड़ा सा आगे आ जाए. एक लाइन से बैठिएगा, एक लाइन में. कितने लोग आज अपने परिवार के साथ आए? हाथ उठाकर दिखाएं. ओ वेरी गुड. मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आज बहुत से लोग अपने परिवार के साथ आए. अगर आप थोड़ा सा आगे आ गए तो आप बैठ सकते हैं. पीछे मंडप में अगर बहनें आगे आ गई तो और अच्छा है. थोड़ा कोशिश करिए, बीच में जगह दिख रही है मुझे, है ना?
प्रभु नहीं चाहता कि इन मीटिंग्स के माध्यम से कोई भी यहां से बीमार होकर जाने पाए, पर प्रभु चाहता है भले और आप चंगे रहने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं इस सुवार्ता महोत्सव के इस दूसरी रात्रि में प्रभु ने मुझको और आपको लेकर के आया। आप में से जितने लोग समय निकालकर आज की आराधना में इन सभाओं में आए हैं, प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष देने पाए, बड़ी बरकत देने पाए। मुझे बताया गया कि कुछ लोग दूर दूर से भी आए हैं। आप जहां से भी आए हैं, प्रभु आपको अपनी उपस्थिति से आज खाली नहीं भेजेगा। आमेन। सुंदर आराधना आपने भाई सूरज के साथ आपने करी। प्रभु आपको आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। इन सभाओं में मिलने के लिए और भाग लेने के लिए मेरे कुछ मित्र जो प्रभु के सेवक हैं, पास्टर दाऊद भाई, पास्टर किशन भाई, ब्रदर सुभाष और एक सुभाष, और कुछ लोग दूर से सोनगढ़ के पास लेटवेल और सातकासी से भी वे लोग आए हैं। मैं चाहता हूं एक बार वो अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, क्यों ना उनका हम ताली बजाकर स्वागत करने पाए। बहन अरुणा आई है। हम धन्यवाद देते हैं इन भाइयों का। उकई डैम के उस तरफ सातकासी एक जगह है और वहां से ये भाई लोग मिलने के लिए और इन सभाओं में देखने के लिए आए। और उसमें उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, हमको तो गंगापुर में कोई नहीं जानता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नहीं जानता, आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, इस सृष्टि का मालिक आपको जानता है। मोदी जी आपको नहीं जानते होंगे, शाह जी आपको नहीं जानते होंगे, पर प्रभुओं का प्रभु मुझको और आपको जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आसमान मुझको जानता है, स्वर्ग मुझको जानता है। एक छोटी सी गवाही आपके सामने मैं रखना चाहूंगा प्रभु की महिमा के लिए। मैं चाहता हूं भाई हितेश सामने आ जाए। पास्टर किशन आप भी आ जाएं। ये भाई हितेश इनका नाम है। इनकी पत्नी का नाम बहन भद्रिका है। और ये उधर कौन से एरिया में, उमरपाड़ा तालुका में रूडी गवा में बोल नहीं पा रहा हूं, वहां पर भाई हितेश सरपंच है। पिछले दिनों में इनकी पत्नी, हमारा एक बाइबल कॉलेज सोनगढ़ में चलता है, वहां मैं पढ़ाने आता हूं, और वो इनकी पत्नी वहां एक स्टूडेंट बनकर आई। और फिर बातों बातों में मालूम चला कि इनके पास संतान नहीं है। इसी साल जनवरी के महीने में सातकाशी में पास्टर किशन के द्वारा एक फैमिली कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और रात्रि में 2 दिन की सभाएं रखी गई। और उन सभाओं में बड़े बोझ के साथ जिनके पास संतान नहीं है, मैंने कहा सामने आए। पर मेरे ध्यान में था भाई हितेश और भद्रिका के पास बच्चे नहीं हैं। आज की शाम आप जो सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े बोझ के साथ हम सब ने मिलकर उस फैमिली कॉन्फ्रेंस में भाई हितेश के लिए और भद्रिका के लिए हमने प्रार्थना करी। और प्रभु सचमुच में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कल कहा परमेश्वर कैसा कार्य करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। और 11 साल के बाद इसी सप्ताह मंगलवार के दिन परमेश्वर ने एक सुंदर बेटी के द्वारा 11 साल के बाद भाई हितेश और भद्रिका को आशीष दिया। मैं चाहता हूं, भाई हितेश बहुत कम बोलता है, शांत रहने वाला भाई है। इनकी पत्नी भी बहुत शांत है, पर आपकी भाषा में 2 शब्द वो प्रभु की महिमा के लिए बोलने पाए। हालेलुया। બધાને
પ્રભુ ઈસુના નામમાં પ્રેમી સલામ. આ કન્વેન્શનમાં ખબર નહીં હતું, પણ પાસ્ટર કિશન સાહેબ એટલે મારો ભાઈ જ છે, પાસ્ટર છે. સાહેબે તો મારી ગવાહી તો આપી દીધી બધાને, પણ અમે એટલા ફર્યા, બેબી ટ્યુબ કરાવ્યું. કોરોના વખતે બે વખત બેબી ટ્યુબ કરાવ્યું. અને આમ આપણે મહારાજ ભગત પાસે આપણે જતા હોય બધા, એવી રીતના બહુ ફર્યો, કંટાળી ગયો. પછી મારા સાતકાશીનો ભાઈ સુભાષભાઈ છે, એ કહેવા લાગ્યો કે તું બહુ ફરીને થાકી ગયો છે, તો હવે એક વાત મારી માન, એમ કે તું દેવળમાં આવ, ચર્ચમાં બેહવા આવ, એમ કે. તો બી મને નહીં, એમ બહુ થાકી ગયો મેં, હવે નહીં, ખર્ચો નહીં કરવાનો એમ. તો સુભાષભાઈ કે એટલી વાત માન, ચાલ ભાઈ વાત માની મેં. અને વાત માની, પ્રભુ પર વિશ્વાસ કર્યો, બહુ વિશ્વાસ કર્યો. એટલે પ્રભુએ મને જો 11 વર્ષ થઈ ગયા અને બાળકી આપી, એટલે પ્રભુનો ખૂબ કોટી ધન્યવાદ કરું છું. અને વિશ્વાસી ભાઈઓ માટે, પાસ્ટર સાહેબો માટે, એ લોકોએ બી મારા માટે પ્રાર્થના કરી, એ લોકો માટે બી આભાર માનું છું. થેન્ક યુ जीसस. धन्यवाद देते हैं इस भाई के लिए. सचमुच में प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है. आमेन, हालेलुया. जो परमेश्वर भाई हितेश और बहन भद्रिका के जीवन में कार्य कर सकता है, वो मेरे और आपके जीवन में भी कर सकता है. आज भाई हितेश सरपंच है, पर आज प्रभु की महिमा के लिए वो कर पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कहां कहां वो नहीं भटके, कितने पैसे को उन्होंने खर्च किया, पर प्रभु ने, क्योंकि बाइबल बताती है गर्भ का फल उसकी ओर से क्या है, प्रतिफल है. प्रेज द लॉर्ड. हम धन्यवाद देते हैं भाई हितेश के लिए, भद्रिका के लिए, उनके आगे के जीवन के लिए. प्रभु उनको विश्वास में बढ़ाए और इनके द्वारा प्रभु, इस भाई सरपंच के द्वारा प्रभु उनके गांव में, उस क्षेत्र में प्रभु और कार्य करने पाए. प्रेज द लॉर्ड. भाई किशन उस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं और प्रभु उनको भी आशीष देने पाए, बरकत देने पाए. थैंक यू भाई हितेश. सचमुच में प्रभु महान है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. गंगापुर के प्रिय लोग, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपके गांव में, आपके बीच में जो प्रभु कर रहा है वो सचमुच में अद्भुत है मेरे प्यारे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मैं जहां कहीं जाता हूं, मैं फैमिली के लिए, पति और पत्नी के लिए जरूर से मैं प्रार्थना करता हूं. मैं आप सबों से विनती करूंगा, जितने वैवाहिक जीवन में हैं, कल की शाम मेरे संदेश से पहले मैं हर एक पति और पत्नी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा. और जितने लोग कल अपने पति और पत्नी के साथ, आपका विवाह हो के 1 साल हुआ हो, 10, 15, 20, 25 जितने भी साल भी हो गए हों, मैं आपसे विनती करूंगा, कल पति और पत्नी, और मैं बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करूंगा. और कल की शाम जिनके पास संतान नहीं है, अगर ऐसा कोई भाई, ऐसी कोई बहन, ऐसा कोई शादीशुदा है पर उनके जीवन में संतान नहीं है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे. मेरे भी विवाह के बाद 8 साल तक बच्चे नहीं थे. बहुत कुछ मैंने भी किया, पर प्रभु का धन्यवाद देता हूं. लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ मैंने और मेरी पत्नी ने सुना, पर एक ही बात मैं प्रभु से मैं बोलता था, प्रभु मैं तेरी सेवा कर रहा हूं, मैं तेरा काम कर रहा हूं, तू मेरा काम करेगा. और 8 साल के बाद प्रभु ने खूबसूरत बेटे के द्वारा आशीषित किया, और प्रभु ने उसके 2 साल के बाद एक और बेटी के द्वारा प्रभु ने मेरे परिवार को पूरा किया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. निराश मत होइएगा. आइए अपनी आंखों को बंद करिएगा. जितने लोग अपने स्थान पर है, अगर आप घुटना टेक पाए. भाई सूरज, कितने लोग को वो गीत आता है, प्रभु महान विचार यू कार्य तेरे. आज की शाम आइए अपने घुटनों पर आ जाएं, अगर आपके घुटने मजबूत है. इससे पहले कि हम प्रभु का संदेश सुनने पाए,
आइए अपने मनों को, अपने हृदयों को हम तैयार करने पाए। कोई परेशान है शारीरिक रीति से, प्रभु का वचन आपको छूने पाए मेरे प्यारों। यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आज की रात प्रभु आपको छुटकारा देने पाए। मैं चाहता हूं हमारी दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर आइए अपने जगह पर घुटने टेक कर हम प्रभु को धन्यवाद देने पाए। प्रभु विचार्यु कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। आइए दोनों हाथ को उठाकर प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना कितना प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। बोलिए कितना महान, कितना महान, कितना प्रशंसा हो प्रभु यीशु। प्रभु की आत्मा को कार्य करने दीजिए। कितना कितना प्रशंसा हो जब हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की आत्मा हमारे मन में कार्य कर रही है। हर एक दुष्ट की शक्ति यीशु के नाम से निकल रही है। हर एक दुष्ट आत्माएं छोड़ करके जा रही है। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। ओ प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु आज दूसरी रात्रि में तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु अद्भुत कार्य इस मंडप के बीच होने पाए। तेरे लोग चंगाई पाने पाए प्रभु। तेरे लोग छुटकारा पाने पाए प्यारे प्रभु। तेरे लोग शांति को प्राप्त करके जाने पाए। यस लॉर्ड, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। सब बोलिए कितना महान, कितना महान। प्यारे प्रभु जी, तेरे लोग हैं प्रभु जी। आज की शाम जो तेरी उपस्थिति में आए हैं प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे प्रभु जी, हमारे बीच में चलिए प्यारे प्रभु जी, हमारे बीच में फिरिए प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी आज जिसको जैसी जरूरत है प्रभु, मैं किसी की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता प्रभु, मैं किसी की कमी घटी को पूरा नहीं कर सकता प्रभु, और यदि वो आप चाहे प्रभु, आप चाहे तो आज हर एक कोई आशीष पाकर लौटने पाए प्रभु। आज तेरे नाम की प्रशंसा होने पाए, तेरे नाम की स्तुति होने पाए।
आइए ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देने पाए। थैंक यू लॉर्ड। ऊंची आवाज में ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, प्रभु को महिमा मिले पाए, प्रभु को महिमा मिले पाए। कितना महान, हालेलुया लॉर्ड। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, सबसे महान, सबसे महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, सबसे महान, सबसे महान, सबसे महान, सबसे महान। बिना म्यूजिक के आपकी आवाज होने पाए, आपकी आवाज आनी चाहिए। जितने लोग हाथ मिलकर गाए, कितना कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना प्यारे प्रभु जी, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने हमारे हृदयों को तैयार किया, तूने हमारे मनों को तैयार किया। प्रभु जो वचन बोया जा रहा है वो वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ने वाला होने पाए। प्रभु हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को, हर प्रकार की रुकावट को हमारा मन इधर उधर ना भटकने पाए। पूरे मंडप के नीचे जितने लोग बैठे हैं प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंप देंगे, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे जवान हो। प्रभु जो तुझको ना भी जानता हो, आज की रात्रि वो जानने पाए। सारी महिमा आपको और आपको मिलने पाए। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सब बोलने पाए, सब बोलने पाए। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। थैंक यू वेरी मच। आपके पड़ोस में जो भी बैठा है उसको देख करके बोलिए, आपको देखकर अच्छा लगा, कल भी आइएगा, कल आखिरी मीटिंग है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। मत्ती रचित सुसमाचार। आपने बाइबल खरीदी कि नहीं खरीदी? जिनके पास बाइबल नहीं था, कितने लोग अपनी बाइबल लेकर आए? फिर से एक बार उठा करके दिखाएं। एक प्रभु के दास ने कहा, इस बाइबल और इस बाइबल की बातों को आप जितना उठाएंगे, आप अपने जीवन में उतना ही क्या रहेंगे? ऊपर रहेंगे मेरे प्यारे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबल आपके जीवन में जितना ऊंचाई पर रहेगा, आपका जीवन भी प्रभु में उतना ही ऊंचा रहेगा। आइए इस अद्भुत किताब से आज की शाम और एक अद्भुत बातों को हम सीखने वाले होने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16। मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर अरविंद का, उनकी कलीसिया का, उनके तमाम वडील का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। मैं हर दिन धन्यवाद दूंगा, कल भी दिया, आज भी दिया, कल भी दूंगा, कि प्रभु उनको, उनकी सेवकाई को, उनकी कलीसिया को और आप तमाम लोगों को बड़ी आशीष देने पाए। 16वां अध्याय
और उसके 23वें वचन को आज की शाम हम पढ़ने पाएंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रची सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय एंड वर्स 23, उसके 23वें पद को आज के मनन के लिए हम पढ़ने पाएंगे। और मैं विनती करूंगा हिंदी में भी और उसके बाद फिर गुजराती में भी हम इन दोनों भाषा में हम पढ़ने वाले होने पाएंगे। यस। उसने मुड़कर पतरस से कहा, उसने मुड़कर, मतलब यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता पर है। मनुष्यों की बातों पर तू क्या लगाता है? मन लगाता है। गुजराती में भी पढ़ दें। પણ તેણે પાછા ફરીને પણ તેને પાછા ફરીને પિતરને કહ્યું કે પિતરને કહ્યું કે અરે શેતાન, અરે શૈતાન, મારી પછવાડે જા, મારી પછવાડે જા, તું મને ઠોકર રૂપ છે, તું મને ઠોકર રૂપ છે, કેમ કેમ કે દેવની વાતો પર નહીં, દેવની બાતો પર નહીં, પણ માણસોની વાતો પર તું ચિત્ત લગાડે પણ છે। માણસોની બાતો પર તું ચિત્ત લગાય છે। દેવની બાતો પર નહીં, પણ તું માણસોની બાતો પર चित्त लगाए छे। प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द हैं। आप सोच रहे होंगे पास्टर साहब, कल भी आपके शब्द बहुत कठिन थे, आज भी बड़े कठिन शब्दों के साथ आज अपने संदेश को शुरू कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की ये बातें एक ऐसे चेले को प्रभु कह रहा है जिससे यीशु मसीह बहुत प्यार करता था। यीशु मसीह पतरस को बहुत प्यार करता था। इतना ही नहीं, पतरस भी यीशु मसीह को बहुत प्यार करता था। पर ऐसी कौन सी बात है, ऐसा क्या हो गया कि यीशु मसीह को अपने प्रिय चेले पतरस के लिए इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर चला जा, हे शैतान, मेरे पास से तू दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। यीशु मसीह पतरस से कह रहा है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तब यीशु मसीह ने कारण बताया। यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तू परमेश्वर की बातों को नहीं, पर तू मनुष्य की बातों पर क्या लगाता है? कान नहीं लगाता, लिखा वहां पर क्या लगाता है? मन लगाता है। कान लगाना अलग बात है और मन लगाना अलग बात है। इस अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, थोड़ी देर पहले ही यीशु मसीह ने पतरस की सबके सामने तारीफ करी, क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ पूछा था। यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं पतरस? ये सवाल जब उसने अपने चेलों से पूछा, उन्होंने तुरंत वहां पर उत्तर दिया। 14वें वचन में लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु, कुछ तो आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ आपको एलिया कहते हैं, और कुछ यिर्मयाह कहते हैं, कुछ भविष्यवक्ताओं में से तू एक है कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, वेरी गुड। पर यीशु मसीह ने एक दूसरा सवाल किया। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? What do you call me? गुजराती में क्या लिखा है? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? 15वां पद। પણ તે તેઓને કહે છે, પણ તે તેનો કહ્યો છે,
પણ હું કોણ છું હું કોણ છું એ વિશે તમે શું કહો છો? તમે શું કહો છો? What do you say? आप क्या कहते हो मेरे बारे में? अगर कोई हमारे सरपंच भाई हितेश से पूछे आज, हितेश भाई आप यीशु मसीह के लिए क्या कहते हो? यीशु मसीह के लिए आपके बारे में क्या विचार है? हितेश भाई बोलेगा, मेरा यीशु अद्भुत कार्य करने वाला है, मेरा यीशु अब चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अगर कोई पास्टर स्टैनली से पूछे, पास्टर स्टैनली आप यीशु मसीह के बारे में क्या कहोगे? मैं भी बोलूंगा, प्रभु तेरे बारे में मैं कितना भी बोलूं, मेरे पास शब्द क्या है, कम है प्रभु। यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे हैं, यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछ रहे हैं, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? आज ये सवाल प्रभु मुझसे और आपसे पूछ रहा है। जो इस मंडप में बैठे हैं, प्रभु आज मुझसे और आपसे पूछ रहा है, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तुम्हारा मेरे बारे में क्या विचार है? लोगों का विचार तो उन्होंने बता दिया, तुम्हारा क्या विचार है? सब के सब चुप हो गए, किसी ने कोई भी आंसर नहीं दिया। पर उन सब में पतरस ने कहा, 16वें पद में लिखा है, तब शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीवित परमेश्वर का एक लौता बेटा यीशु मसीह है। इस उत्तर को सुनकर यीशु मसीह ने कहा, हे शमौन यहोना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर क्या है, प्रकट करी। यीशु मसीह ने पतरस की तारीफ करी। मैं सोचता हूं सबके सामने पतरस का सीना 56 इंच का हो गया होगा, उसका सीना चौड़ा हो गया होगा, क्योंकि जो कोई नहीं बता पाया, जिसका आंसर कोई नहीं दे पाया, उसका आंसर कौन दे रहा है? पतरस दे रहा है। पता नहीं, मैं तो वहां था नहीं, आप भी थे नहीं। लोगों ने ताली बजाकर धन्यवाद, वाह पतरस, वाह पीटर, इतना बढ़िया तूने काम किया। यीशु मसीह ने भी कहा, वेरी गुड पतरस, मांस और लहू ने नहीं, पर मेरे पिता ने तुझ पर यह बात प्रकट करी। फिर यीशु मसीह ने उससे कहा, और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। 19वां पद, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। इन आयतों तक सारी बातें बहुत अच्छे से चली। पतरस भी अपने आप को बहुत धन्य समझ रहा होगा, पता नहीं जैसा भी फीलिंग उसका रहा होगा। सबके सामने उसकी तारीफ की गई है। पर यीशु मसीह ने इस घटना के बाद, इन बातों के बाद, यीशु मसीह ने कहा कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं सताया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं बहुत दुख उठाऊंगा, मैं मार डाला जाऊंगा, पर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इन बातों को सुनकर पतरस को अच्छा नहीं लगा। पतरस ने यीशु मसीह को बुलाया, यीशु इधर थोड़ा साइड में। पतरस यीशु मसीह को साइड में लेकर के गया, और प्रभु मेरे रहते हुए ऐसा हो नहीं सकता। बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, प्रभु मेरे रहते हुए तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मैं हूं तो तू है। कितनी बड़ी बड़ी बात, मैं हूं तो तू है। यीशु मसीह ने यही नहीं कहा, पतरस तेरे जैसे लोगों की जरूरत है मेरी टीम में, तेरे जैसे लोग होंगे तो कसम से मजा आ जाएगा सेवा करने में। ऐसा नहीं कहा यीशु मसीह ने। पतरस की बातों को सुनकर, उस प्रिय चेले की बातों को सुनकर,
उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान। अरे बाप रे, कितने कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है यीशु मसीह। अभी थोड़ी देर पहले उसकी तारीफ करी है, थोड़ी देर पहले उसकी प्रशंसा करी है, अब थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह कह रहा है, शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, मेरे नजरों के सामने से तू हट जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। पतरस बोल सकता था, प्रभु अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी तारीफ करी तूने, थोड़ी देर पहले इतनी प्रशंसा करी तूने, और इतनी जल्दी में ठोकर का कारण हो गया तेरे लिए। तब प्रभु ने, यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हां पतरस, तू मेरे लिए ठोकर का कारण बन रहा है। क्यों प्रभु, मैं क्यों ठोकर का कारण बन रहा हूं? मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूं, मैं तेरे लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, यदि तू मेरे लिए और लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता है, पर तू बन नहीं पा रहा है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं, तू मनुष्यों की बातों पर क्या लगा रहा है? मन लगा रहा है। आज की शाम मेरा जो विषय है, आज बहुत लोगों के जीवन में आशीष नहीं आ रही, बहुत लोगों के जीवन में आशीष नहीं आ रही। आशीष आकर रुक जा रही है या आकर चली जा रही है, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्यों की बातों पर क्या लगा रहे हैं? मन लगा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की शाम जो इस मंडप के नीचे आप बैठे हैं, प्रभु आपसे पूछ रहा है, ये वचन आपसे पूछ रहा है, आज की शाम आप किसकी बातों पर मन लगा रहे हैं? किसकी बातों की ओर अपना ध्यान लगा रहे हैं? किनकी बातों को सुनकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? आज कितने लोग हैं, मेरे पास ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं मेरे चर्च से, और मैं जहां जहां सेवकाई के लिए जाता हूं, कई जगह गवाहियों को सुनने को मिलता है। कई बार कई जगह पूछना पड़ता, अरे वो वाले ब्रदर नहीं दिख रहे, अरे वो वाली सिस्टर नहीं दिख रही, अरे वो वाला गाने वाला भाई नहीं दिख रहा, वो बजाने वाला भाई नहीं दिख रहा, वो मंडप वाला नहीं दिख रहा, कहां चला गया? तो कई बार उत्तर मिलता है, पास्टर साहब वो ब्रदर आजकल आ नहीं रहे हैं, वो सिस्टर आजकल आ नहीं रही हैं, वो गाने वाला आ नहीं रहा है, क्या हो गया? तब पता लगता है, लोगों की बातों को सुनकर, मनुष्यों की बातों को सुनकर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सभाएं मनुष्यों के बातों के बताने के लिए नहीं है, ये सभाएं यीशु मसीह के बातों को बताने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो जोश, जो आनंद, जो खुशी, ये प्रयास, ये परिश्रम आप देख रहे हैं, ये मनुष्यों की बातों के लिए नहीं है, ये परमेश्वर की बातों के लिए है। मेरे प्यारों, आप में से कितने लोग को कभी ना कभी डांट पड़ी है? थोड़ा हाथ उठाकर दिखाएं, डांट पड़ी है? अच्छे से उठाइए ना, डांट पड़ी है? देखने दीजिए मुझे हाथ। हाँ, डांट पड़ी है। आपको नहीं पड़ी बहन? तो अच्छे से उठाए। कितने लोग को डांट पड़ी है? कोई डांटता है तो बहुत अच्छा लगता है ना? बोलिए ना, लगता है? नहीं लगता। किसी को डांट अच्छी नहीं लगती। यीशु मसीह ने डांटा होता तो समझ पाती। अरे ये डांट के साथ इतना कठिन शब्द इस्तेमाल किया है, ए शैतान। पतरस बोलता था, प्रभु, ये पतरस बोल देता तो नालायक बोल देता, कुछ और बोल देता। तू बोला भी बोला तो क्या बोला? ए शैतान बोला। प्रभु मेरी इज्जत क्या रहेगी प्रभु? ये अभी 11 लोग मेरे बारे में भी क्या सोचेंगे प्रभु? ये 11 लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे प्रभु?
हमको कई बार हमारे बारे में चिंता नहीं होती, हम दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं। आज मैं सुबह में बोल रहा था, कई बार हम लोग सोचते हैं ये 4 लोग क्या बोलेंगे। कितने लोग बोल, ये 4 लोग क्या बोलेंगे, ये 4 लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ये 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं भी बचपन से यही बातें सुन रहा हूं, ये 4 लोग, ये 4 लोग, ये 4 लोग। कसम से इतने साल हो गए, मैं आज भी ढूंढ रहा हूं ये 4 लोग है कौन, ये 4 लोग है कौन। पर मुझे मालूम है मेरे मरने के बाद ये 4 लोग कंधा देने के लिए आएंगे। कई लोग अपनी जिंदगी उन 4 लोगों के लिए जी रहे हैं। डांट किसी को नहीं अच्छी लगती, मीठे शब्द सुनना चाहते हैं, मीठी वाणी हम सुनना चाहते हैं। पतरस को भी लग रहा था प्रभु मेरी तारीफ करेगा, अरे कोई तो है जो मेरे बारे में सोच रहा है। पर माफ करना, यीशु मसीह ने कहा आई एम सॉरी पीटर, मुझे माफ करना पतरस, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, तू मनुष्य की बातों पर क्या लगा रहा है, मन लगा रहा है। जरा सोचिए, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह अगर ये शब्दों से अगर कहे, आज की शाम आप इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, इतना मेहनत आप कर रहे हैं, और पास्टर अरविंद आपको अगर बोल दे ए शैतान कहीं का, मैं सोचता हूं आपके हाथ में जो बाइबिल होगी, गाने की किताब होगी, जो कुछ भी होगा, आप वहीं पर फेंक करके आप चले जाएंगे। बड़ा आया, हमको शैतान बोल रहे हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना दौड़ भाग कर रहे हैं। पर पतरस भागा नहीं, गया नहीं। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, खुली हुई डांट, 27वां अध्याय उसके 5 पद को पढ़िएगा। नीति वचन की पुस्तक, खुली हुई डांट खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। गुप्त प्रेम से क्या है, उत्तम। उत्तम है। गुजराती में भी पढ़िए 27 उसके ગુપ્ત 5। પ્રેમ કરતા गुप्त प्रेम करता ઉઘાડો ઠપકો સારો છે। उघाड़ो ठपको सारो छे। गुप्त प्रेम करता उघाड़ो टपको सारो छे। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। मैं सोचता हूं उस थोड़े समय के लिए पतरस को यीशु मसीह की वो बातें अच्छी नहीं लगी होगी। एक बार और ऐसी घटना घटी, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लोग यीशु मसीह की बातों को सुनकर, उसके कठिन बातों को सुनकर निराश हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु ये कठिन बातें हमसे सुनी नहीं जाती, हमको तो मीठी बातें पसंद है और आपकी बातें बहुत कठिन हैं। और लिखा है बहुत से लोग उल्टे फिर गए, बहुत से लोग वापस चले गए। यीशु मसीह ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? चर्च प्रिय लोगों, आपको मालूम है वहां पर भी जब किसी ने नहीं बोला, पतरस ने एक बात बोली। पतरस ने कहा, प्रभु हमसे ऐसी बातें मत कर, हमसे ऐसा मत बोलिए, हमें जाने के लिए मत बोलिए, हम जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं प्रभु। पतरस ने कहा, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। शायद किसी ने बोला होगा, हे पतरस, कौन से अनंत जीवन की बातें तूने सुना? तेरे को भूल गया तू? यीशु मसीह ने तेरे को शैतान बोला था। कई बार हमारे ऐसे लोग होते हैं, हमको बहुत पुरानी बातें याद दिलाते हैं। इनको बोलते हैं जले पर क्या छिड़कना। आग लगाए उसमें और मिट्टी तेल डाल देते हैं और तेल डाल देते हैं।
पर पतरस समझ गया ये यीशु मसीह को मुझको डांटने का अधिकार है, फटकारने का अधिकार है, सुधारने का अधिकार है। और उसने यीशु मसीह से कहा, प्रभु अनंत जीवन की बातें तेरे पास ही है, मुझे मत बोलिए आप जाइए करके। प्रभु का धन्यवाद हो। डांट सुनने के बाद भी, इतने कठिन शब्दों को सुनने के बाद भी यीशु मसीह के संग बना रहा। मेरे प्यारों, यीशु मसीह के संग बना रहा, इसलिए प्रभु ने उसको आशीष दी, इतनी आशीष दी मेरे प्यारों, जो पतरस सुसमाचारों में एक डरपोक पतरस था, एक घबराया हुआ पतरस था। और जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, पवित्र आत्मा की सामर्थ को जब उसने पाया, हम प्रेरितों के काम में देखते हैं एक पतरस, डरपोक पतरस, एक अद्भुत पतरस बन गया मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जिसको प्रभु ने शैतान और कठिन शब्दों से इस्तेमाल किया, प्रभु का धन्यवाद हो। आने वाले दिनों में इसी पतरस के द्वारा प्रभु ने पहला और दूसरा पतरस की पत्री को भी लिखवाया मेरे प्यारों। एक समय था जब पतरस ने मनुष्यों की बातों को सुना, और जब एक समय आया जब उसने प्रभु की बातों को सुनना शुरू किया, प्रभु के वचनों पर ध्यान लगाना शुरू किया, प्रभु ने उसको आशीष दी, आशीष दी, आशीष दी और आशीष दी। और आज भी पतरस की पत्रियों के द्वारा प्रभु मुझसे और आपसे क्या करता है? बातें करता है मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा वाला हालेलुया, और अच्छा वाला हालेलुया, और अच्छा वाला। एक हाथ वाला नहीं, दोनों हाथ वाला। हाँ, ये हुई ना बात। एक अच्छे से हाथ उठाइए। भैया एक फोटो खींचना, तो उन लोग बोल रहे कि मेरा फोटो नहीं खींचा। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, जल्दी से खींच। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मास्टर अरविंद ने कितने लोग को डांटा है? थोड़ा हाथ उठाकर दिखाइए। सबसे पहले उनकी बोलो, जवान को भी डांटा है। धन्य है बेटा तुम। एक बार एक बॉस और उसका सर्वेंट, नौकर, दोनों एक मीटिंग में चले गए। और मीटिंग में जाने के बाद, उस दिन का संदेश सुनने के बाद, बॉस ने भी मन फिरा लिया और सेवक ने भी क्या फिरा लिया? मन फिरा लिया। और दोनों अल्टर कॉल में खड़े थे। तो वहां देखे, बॉस देखा, अरे मेरा सर्वेंट भी आया। सर्वेंट में देखा, अरे मेरा बॉस भी आया। दोनों ने मन फिराया। अगले दिन ऑफिस में आए, बॉस ने सर्वेंट को बुलाया, इधर आ। उसका नाम लेते चले, रामू। ए रामू, इधर आ। तो बोले, जी साहब। बोले, तू कल मीटिंग में आया था? हाँ साहब, मैं भी मीटिंग में आया था। गंगापुर में? हाँ साहब, गंगापुर में आया था। तूने भी मन फिराया? हाँ साहब, मैंने भी मन फिराया। तो बॉस ने पूछा, तू तो बहुत सीधा साधा लगता है रे, तू कौन सा पाप कर रहा था? तू कौन से गुनाह कर रहा था? बोले, साहब एक गलती करता था मैं, पर उस गलती से मैंने मन फिरा लिया। कौन सी गलती करता था तू? तो साहब, अब आप जब पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूं, और मुझे मालूम है आज आप गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि आपने मन फिरा लिया है। तो बोले, जा ठीक है, मैं बता दे, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अब तो मैं भी मन फिरा लिया हूं, मैं भी पवित्र हो गया, तू भी पवित्र हो गया, पर बताना क्यों, कौन सी बात थी वो? तो उसने कहा, साहब आप कभी कभी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते थे, बहुत गुस्सा करते थे। ऑफिस में आने के बाद अगर कोई काम देखते थे वो होता नहीं था, आप बहुत गुस्सा करते थे। साहब मुझको बहुत गुस्सा आता था, पर मैं छोटा आदमी, मैं क्या कर सकता हूं? तो फिर क्या हुआ? पर साहब आप गुस्सा होने के बाद मुझसे चाय मांगते थे। आप मुझसे क्या मांगते थे?
चाय मांगते थे और मैं बढ़िया सी चाय बनाने के बाद मैं अपना सारा गुस्सा उस चाय में थूक देता था। मैं अपना सारा गुस्सा उस चाय में थूक देता था और चम्मच से घोलकर मेरा गुस्से वाली चाय आपको पिला देता था और साहब आप बड़े प्यार से वो चाय पी लेते थे। अच्छा हुआ साहब, आप भी बदल गए, मैं भी बदल गया। नहीं पसंद, लोगों को डांट नहीं पसंद, लोगों को सुधारना नहीं पसंद, पर यीशु मसीह सुधारना चाहता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज की शाम में आपसे पूछ रहा हूं, आप किसकी बातों को सुन रहे हैं? अपने मसीही जीवन में किसकी बातों को सुन रहे हैं? कहीं आप मनुष्यों की बातों को तो नहीं सुन रहे? सावधान होने की जरूरत है। बहुत सी आवाजें हमारे कानों में आ रही है, बहुत सी बातें हमारे सुनने में आ रही हैं। यदि आप मनुष्यों की बातों को सुनोगे, आप अपने मसीही जीवन में कहां ठोकर खाकर गिरोगे पता नहीं। पौलुस एक आश्चर्य की बात लिखता है गलातियों की कलीसिया को, गलातियों की मंडली को पौलुस एक आश्चर्य की बात लिखता है। देखेंगे हम गलातियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ गलेशियंस, गलातियों की पत्री, उसका माफ करिएगा 5वां अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, जल्दी से पढ़िएगा, उसके 7वें वचन को पढ़िएगा। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। कैसे लिख रहा है? एक आश्चर्य की बातें लिख रहा है। क्या लिख रहा है पास्टर गुलाब? क्या कह रहा है? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। कैसे दौड़ रहे थे? भली भांति। बोलिए कैसे दौड़ रहे थे? भली भांति। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। गुजराती में पढ़िए। તમે સારી રીતે દોડતા હતા। कैसे? સારી રીતે सारी रीते, तुम्हें सारी रीते दौड़ता હતા, हता, છતાં સત્યને માનતા તમને કોણે રોક્યા? कोने रोकिया रे भाई? कोने रोकिया? सारी रीते भागता, बहुत अच्छे से दौड़ रहे थे। पौलुस कह रहा है इस चर्च के लोगों को, तुम बहुत अच्छे से दौड़ रहे थे। इंग्लिश में लिखा है यू वर रनिंग सो वेल। क्या हो गया तुम्हें? अब किसने तुम्हें रोक दिया? आज की शाम मेरे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं एक समय में आप बहुत अच्छे से दौड़ रहे थे? मेरी बहन, ऐसा तो नहीं एक समय में आप बहुत अच्छे से दौड़ रहे थे, अब आपने शायद दौड़ना बंद कर दिया। किसी की बातों को सुनकर, किसी भाई की बातों को सुनकर, किसी बहन की बातों को सुनकर आपने शायद दौड़ना बंद कर दिया। वो पापा जो बहुत अच्छे से बाइबल पढ़ते थे, वो मम्मी जो बहुत प्रार्थना करती थी, वो परिवार जो हमेशा उपवास प्रार्थना में आगे रहता था, वो परिवार जो दान दशमांश देने में आगे रहता था, अब शायद अच्छा नहीं लग रहा, अब बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, अब प्रार्थना करना अच्छा नहीं लग रहा, चर्च जाना अच्छा नहीं लग रहा, अब पास्टर साहब को देख करके पास्टर साहब को देखने का भी मन नहीं कर रहा। कहीं आपने मनुष्यों की बातों तो नहीं सुनी? पौलुस कह रहा है तुम बहुत अच्छे से दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया? उसके बाद वाली आयत को पढ़िएगा, 8वां पद। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। ऐसी शिक्षा हमने तुम्हें नहीं दी है, ऐसा हमने तुम्हें नहीं सिखाया है, और कुछ तो हुआ है। इसलिए आज वो पापा दौड़ नहीं रहे हैं, वो मम्मी दौड़ नहीं रही है, वो भैया दौड़ नहीं रहा है, अब मीटिंग में आने का मन नहीं कर रहा है। मुझे पता नहीं कौन इस मीटिंग में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, और शायद कोई होगा पीछे पीछे से खड़े होकर चले जाते होंगे, पीछे पीछे से बात करके चले जाते होंगे। कहीं आप मनुष्यों की बातों को सुनकर तो अपने आत्मिक जीवन को खराब तो नहीं कर रहे?
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन आप दौड़ना बंद कर दोगे, उस दिन से आपके जीवन में एक आत्मिक पतन होते जाएगा। मेरे प्यारों, ये मीटिंग दौड़ने के लिए है, ये मीटिंग आपको आगे जाने के लिए है। पौलुस कहता है, मुझको और आपको दौड़ना है। मेरी इच्छा है आप दौड़ने वाले विश्वासी बनने पाए। पास्टर अरविंद की इच्छा है आप आगे जाने वाले विश्वासी बनने पाए। और पौलुस हैड टू से समथिंग, पौलुस कुछ कहना चाह रहा है। 9वें पद में देखिए क्या कह रहा है। थोड़ा सा खमीर, कितना खमीर भैया? थोड़ा सा अरे खमीर कितना खमीर? थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। सारे गुथे हुए आटे को क्या कर देगा? खमीर कर डालता है। खमीर कर देगा। थोड़ा सा खमीर, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खमीर। गुजराती में 9 पद। થોડું ખમીર થોડું ખમીર લોટના આખા લોંદાને ખમીરી કરે છે. લોંધાને ખમીરી કરે છે. थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा खट्टापन, छोटी सी बात। जीप कितना बड़ा होता है बहन? जीप कितना बड़ा होता है? पास्टर साहब नापा तो नहीं कभी हमने नापा नहीं। पर याकूब कहता है कितना बड़ा है जीप? छोटा सा है, छोटा सा अंग है, पर जंगल में भी क्या लगा देता है? आग लगा देता है। आपको मालूम है जीप में कोई हड्डी नहीं होती। भिलाई वालों की जीप में, अब गंगापुर वाले के होती हो तो पता नहीं होती। जीप इतना स्मार्ट है, 32 दांत के अंदर रहता है, पर कभी भी उन दांतों में फंसता नहीं है। कितना स्मार्ट है ना जीप, है? बेचारा 24 घंटे कहां रहता है? 32 दांतों के बीच में रहता है ना? एक आध बार कभी गलती से दबता होगा, पर रोज नहीं दबता। कितना स्मार्ट है ना जी, हैं? कितना स्मार्ट है। इस जीप की खासियत यह है, इसमें एक भी हड्डी नहीं होती, पर कसम से उसको अगर गुस्सा आ जाए तो वो मेरी 208 हड्डी को तोड़वा सकती है। ये जीप में इतनी ताकत है, 7 फुट के आदमी को भी गड्ढे में गिरा सकती है। खबरदार, किसकी बातों को सुन रहे हैं? मम्मी, पापा, भैया, दीदी, अंकल, आंटी, आप दौड़ रहे हैं कि भाग रहे हैं? दोनों शब्दों में फर्क है। आप दौड़ रहे हैं कि भाग रहे हैं? आज की शाम ये मीटिंग भागने के लिए नहीं है, ये मीटिंग आपके दौड़ने के लिए रखी गई है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है आप अपने मसीही जीवन में दौड़ने वाले होने पाए। प्रभु चाहता है अपने मसीही जीवन में आगे जाने वाले होने पाए। प्रभु का दास पौलुस कह रहा है, तुम भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया? भाई मेरे रुकना नहीं, बहन मेरे रुकना नहीं। जिस दिन आप रुकने लगोगे, अपने मसीही जीवन में आप पीछे हटने लगोगे। किसकी बातों को सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्या मैं किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं? कोई मेरे लिए ठोकर का कारण तो नहीं। अगर कोई मेरे लिए ठोकर का कारण है तो हो सकता है वो परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्यों की बातों पर क्या लगा रहा है? मन लगा रहा है। आज चर्च में काम करने वालों की जरूरत है कि कान भरने वालों की जरूरत है? हाँ, वही तो मैं सुनना चाहता था। बोल रहे कान भरने वालों की जरूरत है। किसकी जरूरत है बताइए? आज हमारी बहनें, पीयूष भाई की पत्नी
अरविंद भाई की पास्टर की पत्नी और कुछ बहनें, आज सुबह ही मैं किचन में सुबह ही चला गया, आज 6:30 पौने 7 बजे ही चला गया मैं। बहनें रोटियां बना रही थी। रात 12:30 करीब मैं वहां कमरे से निकला। उसके बाद वो पता नहीं कब सो रही थी, कितनी देर वो सोई पता नहीं, फिर सुबह उठकर काम कर रही है। अगर कोई जाके आग लगाना चाहे तो ही बनाएगी रोटी। तू रोटी बना बना के बिना चोटी बनाए मीटिंग में आ रही है। हैं? अगर किसी ने ऐसा छेड़ दिया, पगली कहीं की, तेरे को ना सुबह की मीटिंग मिल रही ना शाम की मीटिंग मिल रही, तेरे को क्या फायदा हो रहा? मैं आज पास्टर अरविंद से बोल रहा था, पास्टर अरविंद, आपके चर्च में आपके परिवार में अच्छे लोग हैं, इतनी बड़ी सभा को चलाना, 3 दिन सबको खाना पीना खिलाना रखना, हाँ थोड़ी तकलीफ होगी, घर के समान सुविधा नहीं होगी, पर जब तक हम परमेश्वर की बातों को सुनते रहेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, जब तक आप परमेश्वर की बातों को सुनते रहेंगे, आने वाले दिनों में प्रभु के आने में देरी हुई, ऐसे कई सभाएं आप करते रहेंगे। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, लोगों की बातों को मत सुनना। लोग हमारे विश्वास को, हमारे मनोबल को बढ़ाने वाले नहीं, कई बार हमारे मनोबल को गिराने वाले लोग हैं। हमें प्रोत्साहित करने वाले नहीं, हमें निराश करने वाले लोग हैं। पर आज की शाम प्रभु आपसे कहता है, मनुष्यों की बातों का ख्याल मत करना, मनुष्यों की बातों पर मत सोचना। जिस दिन उनकी बातों को आप सोचने लगोगे, आप अपने मसीही जीवन में पीछे हट जाओगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। मेरी घड़ी भी बहुत तेजी से दौड़ रही है और मैं समय पर समाप्त करूंगा। प्रभु के दास ने जो समय दिया है, समय पर मैं समाप्त करूंगा। नीति वचन की पुस्तक बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3। आप लोग बाइबल निकाल भी रही हो कि मोबाइल में देखकर कुछ देख रहे हो? बोले पास्टर साहब तो फेसबुक में है, मैं थोड़ा फेसबुक चेक कर लूं। अपने पड़ोसी से पूछना, फेसबुक में हो कि फेसबुक में हो? जवान बच्चों, कौन सा बुक खुला है, फेथ की फेस है कि फेक? प्रभु का धन्यवाद हो, आज मेरे पास फेक न्यूज नहीं है, आज मेरे पास फेक न्यूज है। आमेन। 3रा अध्याय और उसके 5वीं आयत को पढ़िएगा। आप मेरे साथ हैं? यस। और हमारी पीछे जो बहनें बैठी हैं, थोड़ा हाथ उठाकर बोले आप मेरे साथ हैं। ओ थैंक यू वेरी मच। यस यस यस। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। आप ऐसे हाथ हिला रहे तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बोल रहे टाटा हो गया, जाओ। बोल रहे हाँ हो गया, 2 दिन हो गए, जाओ। आज बहुत से लोग पास्टर अरविंद से बोल रहे थे मैं जा रहा हूं। जब सब उनसे रजा लेने आ रहे थे तो मैं भी बोला मैं भी जा रहा हूं। तो पास्टर अरविंद खड़ा हो, नहीं उनको नहीं जाने देंगे। आप कितना भी टाटा करो, कल ही जाऊंगा मैं। और कितना भी रुको बोले, फिर रुकने वाला नहीं हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़िएगा पास्टर साहब। या तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना? भरोसा करना। पढ़ना भैया। तारा खरा हृदय थी यहोवा पर भरोसा रख। तारा कौन सा हृदय? खरा सड़ा हृदय थी यहोवा पर भरोसा रख। कौन सा हृदय? सड़ा हृदय ना, ऐसे ऐसे लिखा। खरा खरा खड़ा खड़ा तारी। मैं ये देख रहा था आप मेरे साथ है कि नहीं। वो जैसे बोला तारीख, खड़ा हृदय, खड़ा खड़ा, किसको खड़ा बोला?
તારી ખરા હૃદયથી यहोवा पर भरोસો રાખ યહોવા પર ભરોસા રાખ અને તારી પોતાની જ અક્કલ પર આધાર ન और રાખ. તાની પોતાની અક્કલ પર આધાર ન રાખ. अक्कल पर आधार ना रख. आधार कार्ड रखना पर अक्कल मत रखना उस पे. पास्टर गुलाब भाई, अगर आप अपना नाम लगाकर इस पद को पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? आप पढ़िए. गुलाब, अपनी समझ का सहारा ना लेना. ऐसा तो गुलाबी का ले लेना कभी कभी. हमारे भाई गुलाब भाई की पत्नी यहाँ पर बैठी. कहां पर है? गुलाबी बैठी यहाँ पर. ये मेरा नाम दिया हुआ है. कई बार मैं कुछ आयतों को अपना खुद का नाम लगाकर पढ़ता हूं मैं. और जब मैं अपना नाम लगाकर पढ़ता हूं, ये वचन मुझे और व्यक्तिगत लगता है, और पर्सनल लगता है. स्टैनली, तू अपनी समझ का सहारा कभी कभी लेना. नो 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 नो, ऐसा नहीं लिखा है. स्टैनली, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से, पूरे मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना. सूरज, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना. दाऊद, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना. आज कितने लोग हैं, कई बार अपनी समझ का सहारा लेने के कारण, अरे मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं, मुझे कोई नहीं समझा सकता, मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो होशियार हूं. इस पृथ्वी का सबसे ज्ञानवान व्यक्ति सुलेमान कह रहा है, स्टैनली, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, पर संपूर्ण मन से उस परमेश्वर के ऊपर क्या करना? भरोसा करना. तब लिखा है, उसी वचन में लिखा है, उसी को स्मरण करके, उसी को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए कैसा मार्ग निकालेगा? सीधा मार्ग निकालेगा. आज आपके रास्तों में शायद टेढ़ापन आ गया होगा. लोगों की बातों को सुनने के कारण शायद आप गलत रास्ते में भटक गए होंगे, गलत बातों में आप चले गए होंगे. आज की रात प्रभु आपसे कह रहा है, मनुष्यों की बातों पर नहीं, परमेश्वर की बातों पर मन लगाना मेरे भाई. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी है, परमेश्वर की आराधना करना जरूरी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है. आज कितने लोग अपनी समझ का सहारा लेने के कारण, अपने बुद्धि और ज्ञान का सहारा लेने के कारण अपने आत्मिक जीवन में भटक जा रहे हैं. इसलिए प्रभु का दास पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, इसलिए जो समझता है वह स्थिर है, सावधान रहे, कहीं गिर ना जाए. मेरे प्रिय भाई और बहन, एक समय था प्रभु आपसे बातें करता था. एक समय था जब आप प्रभु की बातें सुनते थे, पर आपने मनुष्यों की बातों को सुनने के कारण अब परमेश्वर ने आपसे बात करना बंद कर दिया. कई बार लोग बोलते हैं, पास्टर साहब सब चर्च को देख लिया मैंने, सब पास्टर को देख लिया मैंने, क्यों ये बातें कह रहे हैं? कहीं ना कहीं आप परमेश्वर की बातें नहीं, मनुष्यों की बातों को आप सुन रहे हैं. सावधान. कई बार लोग बड़े दबे पांव विश्वासियों के आ जाते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं, मनुष्यों की बातों को बो करके चले जाते हैं. दिखने में वो स्वर्गदूत लगते होंगे, पर याद रखिएगा वो स्वर्गदूत नहीं है. इन अंतिम दिनों में सावधान होने की जरूरत है. बहुत सी गलत शिक्षाएं आ रही हैं, और लॉकडाउन के बाद से तो YouTube में भरमार हो गई. लॉकडाउन के बाद जब चर्च चालू हुआ, मेरे यहां भी कई लोग आने का मन नहीं. पास्टर साहब ऑनलाइन में अच्छा लग रहा है. मैं बोला क्या अच्छा लग रहा है?
मैं बोला कितना बढ़िया, ना नहाना है, ना धोना है, ना कपड़े पहनना है, ना पेट्रोल का खर्चा बच रहा है, दान दशमांश का भी बच गया, घर में बैठे क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक भाई ने मुझसे कहा पास्टर साहब मैं ऑनलाइन में जुड़ता हूं। मैं बोला पहले लाइन पे आ फिर ऑनलाइन में जुड़ना। ना तू लाइन में, ना तेरी बीवी लाइन में, ना तेरा बेटा लाइन में, ना तेरी बेटी लाइन में, पूरा खानदान लाइन में नहीं है। ऑनलाइन में जुड़ के क्या करेगा? सावधान होने की जरूरत है। बंबई पास में ही है, सारा कचरा बंबई से आज घुस रहा है। सावधान होने की जरूरत है, कहीं मनुष्यों की बातों को तो आप नहीं सुन रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मार्क, उसका 5वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 35वां वचन, वर्स 35। वह यह कह ही रहा था वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय का सरदार के घर से आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई। लोगों ने आकर कहा याईर से कि तेरी बेटी मर गई है। इसकी बेटी जब मरी नहीं थी, याईर यीशु मसीह के पास गया। 22वें पद में लिखा है, याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसे यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख, भी क्या हो जाए वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। जब याईर यीशु मसीह के पास आया, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। जब याईर यीशु मसीह के पास आया, उसकी बेटी मरने पर थी, मरी नहीं थी। यीशु मसीह के पांव पर गिरकर यीशु मसीह से बोल रहा है, यीशु मेरी बेटी पर दया कर, मेरी बेटी मरने पर है। यीशु क्या आप मेरे घर चलेंगे? यीशु क्या आप मेरे घर आएंगे? मेरी बेटी बहुत दिनों से बीमार है। यीशु ने कहा क्यों नहीं आऊंगा याईर, मैं तो दुखी और परेशान लोगों के लिए आया हूं। और याईर यीशु मसीह को घर लेकर जा रहा है। जब आप इस घटना को पढ़ते हैं, बाइबल बताती है याईर की 12 साल की बेटी थी। पर उसी अध्याय में एक और घटना लिखी है, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। याईर की बेटी भी 12 साल की है जो मरने की स्थिति में है, और एक स्त्री जो 12 वर्ष से उसके जीवन में शांति नहीं, आराम नहीं। मेरे प्यारों, आज की शाम मुझे पता नहीं आप कितने साल से बीमार हैं, आप कितने साल से परेशान हैं। मुझे नहीं पता आज कौन पिता अपने बेटे के लिए परेशान है, अपनी बेटी के लिए परेशान है। आज कितने माँ बाप आते हैं, पास्टर साहब मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिए, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करिए, मेरे जवान बेटे के लिए प्रार्थना करिए, बिगड़ गया पास्टर साहब, गलत रास्तों में चला गया है। आज याईर यीशु मसीह को अपने घर लेकर जा रहा है। उसे नहीं पता था कि ये 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री बीच में आ जाएगी। और समय बीतता गया, थोड़ी देर हो गई। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री चंगी होकर चली गई। अब यीशु मसीह याईर के घर जा रहा है। याईर के घर से कुछ लोग आ रहे हैं। याईर के घर से कुछ लोग आए और उन्होंने रास्ते में उससे कहा, याईर तेरी बेटी मर गई है, तेरी बेटी मर गई है। अब कोई
फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? लोगों ने कहा गुरु को क्यों दुख देता है? आगे पढ़िए क्या लिखा है। जो बात वे कह रहे थे जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके उसको यीशु ने अनसुनी करके, सब बोले अनसुनी करके, अनसुनी करके सब बोले अनसुनी करके। अनसुनी करके किसको मालूम है इसका मतलब? मालूम है अनसुनी का मतलब? सुनकर भी नहीं सुनना। गुजराती में क्या लिखा है? પણ ઈસુ તે વાત પર ધ્યાન ન આપતા पर यीशु ते बात पर ध्यान ना आपता। कौन सी बात पर ध्यान ना आपता? क्या गांव वालों ने गलत जानकारी दी? नहीं, गांव वाले सही जानकारी दे रहे थे कि तेरी बेटी क्या हो गई है, मर गई है। कम से कम मरने वाली बात तो लोग सच ही बताते हैं, दूसरी बात भले बोलेंगे, झूठ बोल देंगे, पर मरने वाली बात कई बार अक्सर लोग बोलते हैं यार मरने वाली बात तो सच बता दो। पर लिखा है यीशु मसीह ने, हाँ पढ़ना ब्रदर पास्टर। પણ ઈસુ તે વાત પર ધ્યાન ન આપતા पर यीशु ते बात पर ध्यान ना आपता સભા સ્થાનના અધિકારીને કહે છે आओ अधिकारी ने कहे छे ભીમા भीमा માત્ર વિશ્વાસ રાખ मात्र विश्वास रख। અને પિતર યાકૂબ તથા યાકૂબના ભાઈ યોહાન સિવાય તેણે પોતાની સાથે કોઈને આવવા ન દીધું। बस बस यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुनी करके कहा। यीशु मसीह ने जो लोग थे और उनकी बातों को सुनकर कहा, जो बातें कह रहे थे, यीशु ने अनसुनी कर कर याईर से कहा मत डर, विश्वास कर। सब ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा, एक बात कहने जा रहा हूं। एक तरफ यीशु खड़ा है और एक तरफ याईर के गांव वाले खड़े हैं, बीच में वो बेटी का बाप खड़ा है। किसकी बातों को सुने? यीशु की बात कि गांव वालों की बात? आप बताइए किसकी बातों को सुनना है? अभी तो बोल रहे यीशु की बात, घर जाने के बाद किसकी बात सुनेंगे? गांव वाले गलत नहीं बोल रहे हैं, गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर बड़ी दुविधा में है बाप। अगर गांव वालों की बात सुनेगा तो यीशु घर नहीं जाएगा, पर अगर यीशु मसीह की बात सुनेगा तो यीशु कहां जाएगा? घर जाएगा। गांव वाले सोच रहे हैं यीशु मरे हुए के लिए कुछ नहीं कर सकता, पर आज की रात मैं आपसे कहना चाहता हूं चर्च, आज की रात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरा यीशु मरे हुए के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी चीज मरी हुई है? क्या आपकी प्रार्थना मर गई? आपका बाइबल पढ़ना मर गया? आपका उपवास खत्म हो गया? आज की शाम आपसे मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह को अपने घर जरूर लेकर के जाइएगा। मनुष्यों की बातों को अनसुनी करके, यीशु मसीह ने कहा लोगों की बातों को मत सुन। यीशु मसीह ने कहा मत डर, विश्वास रख। दो ही बातें यीशु मसीह ने उससे कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और तू अगर विश्वास रखेगा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा मेरे प्यारों। आज की रात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके घर की परिस्थिति कैसे है मुझे नहीं मालूम, आपकी घर की हालात कैसे है मुझे नहीं मालूम। शायद बीते कई दिनों से लड़ाई हो रहे होंगे, झगड़े हो रहे होंगे, आपका मामला शायद कोर्ट में होगा, आपका मामला शायद पुलिस स्टेशन में होगा। कई दिनों से आप परेशान होंगे, पर आज की रात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हो कि आपके घर में शांति आ जाए, आप चाहते हो आपके परिवार में शांति आ जाए, आज की रात यीशु मसीह को अपने घर जरूर लेकर के जाना। हालेलुया,
हालत ये कहती कभी भी न होगा, हालत ये कहती कभी भी न होगा, वचन तेरा कहता धोखा न होगा। हालत ये कहती कभी भी न होगा, हालत ये कहती कभी भी न होगा, वचन तेरा कहता धोखा न होगा, वचन तेरा कहता धोखा न होगा। आज की शाम आपकी हालत कैसी भी कहती होगी, आपकी परिस्थिति आपसे कहती होगी, आपका समझ आपसे कहता होगा कुछ नहीं हो सकता, पर आज की रात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु कैसा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है मेरे प्यारों। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालत ये कहती कभी भी न होगा, वचन तेरा कहता धोखा न होगा। हालत ये कहती कभी भी न होगा, वचन तेरा कहता धोखा न होगा। आज की शाम यीशु को अपने घर लेकर जाइएगा। जिस दिन याईर अपने यीशु को अपने घर लेकर गया, उसकी हालात बदल गई, उसकी परिस्थितियां बदल गई और उसकी मरी हुई बेटी जिंदा हो गई मेरे प्यारों। हालेलुया। आज कौन यीशु को अपने घर ले जाने के लिए तैयार है? आज कौन यीशु को अपने परिस्थिति में ले जाने के लिए तैयार है? और आज यीशु आपके घर आना चाहता है। हालेलुया। कौन कहता है मैं यीशु को अपने घर लेके जाऊंगा? हालेलुया। आज बोलिएगा यीशु, हाथ उठाकर बोले यीशु मेरे घर आइएगा। मेरी मरी हुई चीजों को, मेरी परिस्थितियों को, मेरी परेशानियों को, मेरी बिगड़ी हुई बातों को, मेरे बिगड़े हुए कामों को ओह प्रभु ठीक कर दीजिएगा। मेरा विचार कहता है यह हो नहीं सकता, पर तेरा वचन कहता है कभी धोखा नहीं हो सकता। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए। यस लॉर्ड। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार करूंगा स्तुति तेरी मैं। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। याईर के पिता ने लोगों की बातों को नहीं सुना, यीशु की बातों को सुना। यीशु की बातों को सुनने के कारण उसकी मरी हुई बेटी जिंदा हो गई मेरे प्यारे। आज की रात मैं फिर से एक बार आपसे पूछ रहा हूं, कौन चाहता है कि यीशु आपके घर आए? अपने हाथ को उठाकर दिखाए, अपने स्थानों पर खड़े हो जाए जो अपने हाथ को उठा रहे हैं। यस लॉर्ड प्रभु जी। मेरे भाई, मेरे बहन, आपके हाथों को प्रभु ने देखा है। आपकी घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं है, आपकी घर की हालात अच्छी नहीं है, पति और पत्नी का रिश्ता शायद अच्छा नहीं है,
बच्चों के बीच की जिंदगी अच्छी नहीं है। आज यीशु आपके घर आना चाहता है। यीशु आपके घर आना चाहता है भाई। यीशु आपके घर आना चाहता है बहन। आज यीशु को बोलिएगा, यीशु मैं आज तुझको अपने घर ले जाना चाहता हूं। यीशु आज मैं तुझको अपने घर ले जाना चाहती हूं। मेरे घर में लड़ाइयां हैं प्रभु, मेरे घर में झगड़े हैं प्रभु, मेरे घर में बीमारियां हैं प्रभु, मेरे घर में तंगी है प्रभु, मेरे घर में परेशानी है प्रभु। प्रभु मैंने अपना जीवन मनुष्यों की बातों को सुनकर खराब कर दिया प्रभु, पर तेरे बातों में जीवन है प्रभु। आज वो अनंत जीवन की बातें मुझको चाहिए प्रभु। प्रभु आज तूने मुझसे बातें करी है प्रभु। प्रभु आज मैं तुझको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। जो यीशु को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, जल्दी से अपने स्थान को छोड़कर आगे आ जाएगा। किसी को मत देखिएगा, दौड़ते हुए भागते हुए जो यीशु को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। आज की रात यीशु आपके साथ जाना चाहता है। आज मेरा यीशु गंगापुर में है। आज मेरा यीशु गंगापुर में है, और आज गंगापुर वालों के घर जाने के लिए यीशु तैयार है। अनोखा प्यार है तेरा। जब इस गीत को गाते मैं चाहता हूं अपने स्थानों से आ जाओ। यीशु आज आपके साथ जाने के लिए तैयार है। यस, यीशु आपके साथ जाने के लिए तैयार है। कमाल कमाल कमाल, यीशु को आज जरूर लेकर के जाना। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी तरफ देखिए। आप चाहते हैं कि यीशु आपके साथ आए, आप चाहते हैं कि यीशु आपके घर आए। यीशु भी आना चाहता है। यीशु कह रहा है मैं तेरे दिल के द्वार पर खटखटा रहा हूं। मेरे भाई, यीशु आपके द्वार के दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। आज सुबह भी बहुत से लोग आंसुओं के साथ थे। आज मैं बहुत से भाइयों को रोते हुए देख रहा हूं। मेरा यीशु जो याईर के घर के हालात को बदल सकता है, आज की रात वो आपके भी घर के हालात को बदल सकता है। केवल विश्वास रख। आज जितने लोग आए हैं, मैं दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। मत डर, केवल विश्वास रख। और कौन आज यीशु मसीह के पास आना चाहता है? यीशु मसीह आपके घर आना चाहता है। यीशु मसीह जिसके घर में गया, उसकी जिंदगी को बदल दिया मेरे भाई, उनके हालातों को बदल दिया। जितने लोग सामने आए हैं, अपने हाथ को उठाकर बोलिएगा, यीशु मेरी हालात को बदल दीजिए। मैं मनुष्यों की बातें नहीं, तेरी बातों को सुनने आया हूं। मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे घर की परेशानियों को बदल दीजिए, मेरे पति को बदल दीजिए, मेरी पत्नी को बदल दीजिए, मेरे बच्चों को बदल दीजिए, मेरी बीमारी को ठीक करिए। प्रभु मुझ पर दया करिए। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। आमेन। यस लॉर्ड। प्रभु जी दया करिए। प्रभु जी जितने लोग इस वेदी के पास आए हैं, प्रभु जी दया करिए। प्रभु जी दया करिए। प्रभु जी दया करिए। प्यारे प्रभु जी इनकी हालात को बदल दीजिए। प्यारे प्रभु जी
डॉक्टरों ने कहा है ठीक नहीं हो सकता, और तेरा वचन कहता है कभी धोखा नहीं हो सकता। यस लॉर्ड। हर एक को अपने सर के ऊपर हाथ रखिएगा, अपने सर के ऊपर हाथ रखिएगा। आंख खोलकर मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिएगा। यहां पर बहुत से विचार आपको परेशान करते हैं। आपकी अकल आपको बताती है ठीक नहीं हो सकता, और मेरा वचन कहता है मैं आज भी अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार हूं। Praise the Lord। ये देश का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। बेटी विश्वास करती है, करती है, प्रभु तेरे लिए करेगा। मैं बहुत सी माताओं के यहां पर देख रहा हूं जो बहनें रो रही हैं, आपकी घर की हालात ठीक नहीं है, एक एक दिन चलना बहुत मुश्किल है, पर प्रभु आज से आपके काम धंधों को आशीष दे, प्रभु आपके घर को आशीष दे। मैं आपके लिए एक विश्वास की प्रार्थना करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे समय का भी ध्यान रखना है। पास्टर साहब ने मुझे 10:15 का टाइम दिया है, मेरे पास 5 मिनट और टाइम है, और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं आपसे 2 ही बात कहूंगा, मत डर, केवल विश्वास कर। ये यीशु मसीह की बातें हैं। मनुष्य ने क्या कहा भूल जाइए, डॉक्टर ने क्या कहा भूल जाइए, मायके वालों ने क्या कहा भूल जाइए, ससुराल वालों ने क्या कहा भूल जाइए, मित्रों ने क्या कहा भूल जाइए, पड़ोसियों ने क्या कहा भूल जाइए। यीशु मसीह की बातें याद करिए, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रार्थना करने दीजिए। जीवित अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इन सभाओं की दूसरी रात्रि के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे वचनों के लिए धन्यवाद हो। तूने कहा मनुष्यों की बातें नहीं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान रखना। प्रभु आज जितने भाई और बहन यहाँ पर वेदी के सामने खड़े हैं, प्रभु जो बहनें और जो भाई आंसुओं के साथ हैं, प्रभु इनके घर की हालात ठीक नहीं है प्रभु, पर यीशु आज आपको ये साथ लेकर जाना चाहते हैं। यीशु आज आप इनके साथ जा रहे हैं। यीशु आज से इनके घर की हालात बदल रही है। प्रभु आज से इनकी घर की परेशानियां दूर हो रही है। प्रभु आज से इनके घर में शांति आ रही है, इनके मन में शांति आ रही है। प्रभु आज की रात आप असंभव को संभव कर रहे हैं प्रभु जी, असंभव को संभव कर रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि ये तेरे बच्चे विश्वास कर रहे हैं। प्रभु जितने लोगों ने अपने हाथ को अपने सर के ऊपर रखा है, प्रभु तेरा अभिषेक उनके जीवन में होने पाए, तेरी आशीष उनके जीवन में होने पाए। प्रभु जिन बातों की वो चिंता करते हैं, आज से हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार का डर यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु इनके जीवन में तू बढ़ने पाए। आने वाले दिनों में ये बड़ी गवाही के साथ मेरे पास आए। प्रभु जो नौकरी करने वाले आशीष दे, काम धंधे वाले को आशीष दे, उनके बिजनेस को आशीष दे, पढ़ने वाले बच्चों के संग रहे प्रभु जी, प्रभु जी बहनों के संग रहे प्रभु। अगर कोई भाई कोई बहन शारीरिक रीति से बीमार होने दीजिए प्रभु, तो मरे हुओं का भी परमेश्वर, तू आज भी जिंदा करने वाला है। 4 दिन के मरे हुए लाजर को तूने जिंदा किया प्रभु जी, तू आज भी अद्भुत कार्य कर सकता है। जो चीजें हमारे जीवन में मरी हुई है प्रभु आज फिर से जीवित होने वाली है। सारी महिमा आपको और आपको मिलने पाए। ईश्वर आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सब बोलिए बोलिए प्रभु तेरा धन्यवाद, बोलिए धन्यवाद प्रभु जी, बोलिए मेरी प्रार्थना को तूने सुना, धन्यवाद। मैं आपसे विनती करता हूं बड़े विश्वास के साथ अपने स्थान पर जाइएगा, और आज यीशु आपके साथ घर जा रहा है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद।